हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विक्रम विशेस टू फिट 3 rods टुगेदर इन द शेप ऑफ अ राइट ट्रायंगल। विक्रम want to fit 3 rods together in the shape of a right triangle. The hypotenuse is to be 2 cm longer than the base and 4 cm longer than the altitude. What should be the length of the rods? Right angle triangle बच्चों क्या होगा? देखो, suppose right angle triangle है, this one is hypotenuse, this one is perpendicular, this one is base. Okay, hypotenuse is to be 2 cm longer than the base. Hypotenuse क्या है? 2 cm longer than the base. Base plus 2. This is your hypotenuse. Hypotenuse is to be 2 cm longer than the base, means h equals to b plus 2, and 4 cm longer than the altitude. H is 4 cm longer than the altitude means perpendicular. Altitude means perpendicular plus 4. Okay, so यहां से मैं बोल सकता हूं h plus 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये plus 2 जब हम शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड तो h minus 2 हो जाएगा b. ओके, और यहां देखो h minus 4 p. This plus 2 shift किया towards left hand side तो h minus 2 b and h minus 4 p. I know b square plus p square equals to h square. Okay, b कितना? h minus 2 whole square, p square h minus 4 whole square, h square. Okay, h minus 2 का whole square h square plus 2 square minus 2 h 2 plus h square plus 16 minus 8h equals to h square. H square 2h square minus 4 minus 8 minus 12h, then 16 plus 4 20 h square. Now 2h square minus h square minus 12h plus 20 equals to 0. H square minus 12h plus 20 equals to 0. H square minus 10h minus 2h plus 20 equals to 0. H minus 10 minus 2 h minus 10 h minus 10 h minus 2 h minus 10 compare with 0, h equals to 10, and h minus 2 compare with 0, h equals to 2. Okay, h equals to 2 not possible. क्यों बोला ऐसा मैंने? पता है, अगर आप h2 रखोगे तो बेस आएगा 2 minus 2 0. कभी भी ट्रायंगल की साइड 0 पॉसिबल नहीं होती, दैट्स व्हाई h equals to 2 not possible. हाँ, h 10 तो बेस कितना होगा? h minus 2 10 minus 2, this will be 8 centimeter, और perpendicular h minus 4 10 minus 4 6 centimeter. Okay, so hypotenuse 10, base 8, perpendicular 6. Clear students? ठीक है, समझ आ रहा है? नेक्स्ट देखो बच्चों, स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 60 centimeter square and the length of each one of its equal side is 13 centimeter. Find its base. ट्राइंगल कैसा है बच्चों? आइसोसेलेस. ट्राइंगल ABC we called isosceles triangle. क्या होता है स्टूडेंट्स isosceles triangle? Isosceles triangle means two sides equal. Isosceles triangle means
two sides equal. Each one of its equal side is 13 centimeter. Suppose this one 13 centimeter, this also 13 centimeter. Okay, and suppose हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, this AD perpendicular to BC. Let AD perpendicular to BC in an isosceles triangle. If we draw perpendicular to the base in any isosceles triangle, if we draw perpendicular to the base, then it bisect the base. पढ़ा है आपने 9th क्लास में? If in any isosceles or in any equilateral triangle, if we draw perpendicular to the base, then it bisect the base. ठीक है, ध्यान देना बच्चों, बात सुनो बच्चों. इसको हम सपोज करते हैं, सपोज दिस विल बी x. ये x है, यहाँ तक ये x है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि परपेंडिकुलर है AD इज परपेंडिकुलर, और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है. जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल में, देन दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द बेस. बाइसेक्ट मतलब D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. तो हमने सपोज BD को x सपोज किया, तो ये x है, तो ये भी कितना हो जाएगा x. तो पूरा BC कितना हो जाएगा 2x. ठीक है, अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट. एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है 60. बेस कितना बच्चों, बेस BC, उस पे आने वाला हाइट AD. नाउ 2 मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 60 120. BC का वैल्यू 2x, AD. ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? लिसन, दिस 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा. x इंटू AD, 260 टाइम्स 60 इक्वल्स टू x इंटू AD. क्लियर? नाउ in triangle ABD, apply Pythagoras theorem. कैसे? AB square equals to AD square plus BD square. AB 13, AD BD x. ठीक है, listen class, 169 equals to AD square plus x square. ओके स्टूडेंट, एक बात सुनो, यहाँ पर x इंटू AD क्या था 60. तो अगर मैं x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, माजा कि क्या हो जाएगा डिवाइड. AD का क्या वैल्यू हुआ बोलो, 60/x. यहाँ पर अपन ने ड्राइव किया था ना, x इंटू AD इक्वल टू 60. मुझे अगर AD का वैल्यू फाइंड करना है तो x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो AD का वैल्यू 60/x. यहाँ पुट करो वैल्यू, AD का वैल्यू 60/x पुट करो. Now 169 60 का स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. ठीक है, now 169 3600 by x square plus x square. 169 3600 प्लस ये जाएगा x4, ये जाएगा x स्क्वायर. now 169 into x square, 169 x square 3600 plus x4. x4 minus 169 x square plus 3600 equals to 0. ये आपका क्वाड्रेटिक तैयार हो गया.
इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक स्ट्रेटेजी दूंगा क्लास, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एम। क्या बोला मैंने? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एम। ये x4 क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर माइनस 169 एम प्लस 3600 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3600 मल्टीप्लाई है 1। हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। 3600 into 1 3600, इसके फैक्टर्स बनाओ इस तरह से कि प्लस करने पर 169 आ जाए। तो कैसे बनता है बताओ? 144 into 25 करो, 144 into 25 करोगे तो 3600 आएगा, और प्लस करोगे तो क्या आएगा? 169। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? 144 and 25। 144 25। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कॉमन क्या है बताइए? कॉमन m माइनस 144। इसमें कॉमन क्या है? -25 m माइनस 144। ओके, इसमें कॉमन क्या है? m माइनस 144 और m माइनस 25। m माइनस 144 इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 144। ओके, और m माइनस 25 इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 25। ओके, m की दो वैल्यूज आ रही है 144 एंड 25। x स्क्वायर इक्वल्स टू m, x स्क्वायर इक्वल्स टू m, x स्क्वायर m का वैल्यू बच्चों 144, x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 144, तो x कितना होएगा? 12, x 12। ओके, और जब अगर हम बोलते हैं x स्क्वायर इक्वल्स टू m और m की वैल्यू 25 है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? x इक्वल्स टू 5। ठीक है, क्लियर है क्लास? सो बोथ आर एक्सेप्टेबल आंसर्स। x12 आल्सो पॉसिबल, 5 आल्सो पॉसिबल, दोनों वैल्यूज पॉसिबल है। x12 भी हो सकता है और x5 भी हो सकता है। देखो बच्चों, बेस फाइंड करना था ना, क्वेश्चन क्या था? फाइंड इट्स बेस। क्वेश्चन क्या था? फाइंड इट्स बेस। बच्चों, बेस क्या है? बेस BC। BC कितना है बोलो? 2x। इफ x इक्वल्स टू 12, तो बेस BC 2 into 12 24 सेंटीमीटर। इफ x equals to 5, then base BC 2 into 5 10 centimeter. Okay, clear? So base 24 centimeter और 10 centimeter, both are acceptable answers. एक बार फिर रिवाइज करते हैं स्टूडेंट्स। आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया पता था 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ ईच वन ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स बेस। हमने डायग्राम ड्रॉ किया, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें दोनों साइड्स इक्वल हैं 13 13 एंड द बेस BC हमने ड्रॉ किया इसके अंदर परपेंडिकुलर इन एनी आइसोसेलेस ट्राइंगल। इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू द बेस, then it bisect the base, means D is the midpoint of BC. If this one x, this also x. अगर ये x है तो ये भी x होगा, और बेस BC कितना बनेगा? 2x। ठीक है, हमने सबसे पहले बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना? 60 हाफ एज इट इज। बेस BC कितना? 2x। बेस BC 2x। AD हाइट 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 120/2 60 इक्वल टू x इनटू AD निकालना है मुझे, तो x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो AD का वैल्यू 60/x। AD का वैल्यू 60/x। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ABD अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB कितना? 13, AD मुझे नहीं पता, BD कितना बच्चों? x, BD x। ओके, 169 इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। AD का वैल्यू कितना बच्चों? 60/x। AD का वैल्यू 60/x।
169, 60 का स्क्वायर 3600, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके, यहाँ पर अपन एलसीएम लेंगे 1 और x स्क्वायर का एलसीएम x स्क्वायर 3600 प्लस x4, 169 x स्क्वायर 3600 प्लस x4 एज इट इज माइनस हो जाएगा 169 x स्क्वायर प्लस 3600 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पावर 4 चल रहा है, तो मैंने बोला x स्क्वायर इक्वल्स टू m। क्या बोला मैंने? x स्क्वायर इक्वल्स टू m। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 169m प्लस 3600 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स बनाएंगे 3600 into 1, 3600 के फैक्टर बनाओ कि प्लस करने पर 169 आ जाए। तो 144 into 25 मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? 3600 आता है, प्लस करने पर कितना आता है? 169। सो बोलेंगे माइनस 144m माइनस 25m, कॉमन लो m माइनस 144, कॉमन लो माइनस 25 m माइनस 144, m माइनस 144 और m माइनस 25, m minus 144 compare with 0, m equal to 144, m minus 25 equal to 0, m equals to 25। मुझे पता था, मैंने स्टार्टिंग में एजम्पशन ले रखा है x square equals to m, x square equals to m की वैल्यू 144, x वाले के स्क्वायर रूट ऑफ 144, स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12 और x square equals to m और m के 25, तो x कितना रहेगा 5, x या तो 12 होगा या 5 होगा। तो बेस कितना है? 2x, बेस BC इज 2x। अगर x 12 तो बेस BC 24 और x 5 तो बेस BC 10। सो बेस BC आइदर 24 और 10। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो बच्चों। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम वाले बच्चों। Two pipes running together can fill a cistern means container in 3 1/13 minutes. If one pipe takes 3 minutes more than the other to fill it, find the time in which each pipe would fill the cistern. ओके, दो पाइप्स है ना, लेट टाइम टेकन बाय वन पाइप बी x minutes and time taken by other pipe b x plus 3 minutes। ओके, दो पाइप्स हैं, एक पाइप को दूसरे के मुकाबले 3 मिनट्स ज्यादा लगते हैं, तो हमने बोला टाइम टेकन बाय वन पाइप बी x मिनट्स एंड टाइम टेकन बाय अदर पाइप बी x प्लस 3 मिनट्स। ठीक है, टाइम टेकन बाय वन पाइप बी x मिनट्स एंड टाइम टेकन बाय अनदर पाइप बी x प्लस 3 मिनट्स। ओके, ध्यान देना बच्चों। हम मान लेते हैं टोटल कैपेसिटी of cistern be V. Let total capacity of container cistern be V. Okay, ध्यान देना, हम बात करते हैं फर्स्ट पाइप की जिसको x मिनट्स लगते हैं पूरा कंटेनर फिल करने में। फर्स्ट पाइप time consumption to fill the whole cistern x minutes। ओके, फर्स्ट पाइप 1 मिनट वर्क कितना होगा? फर्स्ट पाइप का 1 मिनट वर्क कितना होगा? भाई मुझे पता है फर्स्ट पाइप पूरा कंटेनर x मिनट्स में फिल कर देता है, तो फर्स्ट पाइप 1 मिनट वर्क कितना होगा? v अपॉन x। समझ में आ रहा है? टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप टू फिल द होल कंटेनर। फर्स्ट पाइप जो है पूरा का पूरा कंटेनर सिस्टम फिल कर देता है x मिनट्स में, तो उसका 1 मिनट वर्क कैसे निकालोगे? v बाय x। नाउ सेकेंड पाइप, अदर पाइप, अनदर पाइप, 1 मिनट वर्क कैसे निकालोगे? सेकेंड पाइप जो है वो कंप्लीटली कंटेनर को फिल कर देता है x प्लस 3 मिनट्स में, फुल कर देता है x प्लस 3 मिनट्स में कंप्लीटली फिल कर देता है, तो उसका 1 मिनट वर्क क्या होगा? v अपॉन x प्लस 3। कंबाइंड, मैं बोलूंगा कंबाइंड 1 मिनट वर्क
कंबाइंड 1 मिनट वर्क कैसे निकालोगे? v अपॉन x प्लस v अपॉन x प्लस 3। कंबाइंड 1 मिनट वर्क कैसे निकालोगे? v अपॉन x प्लस v अपॉन x प्लस 3। क्लियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला? कंबाइंड 1 मिनट वर्क कैसे निकालोगे? v अपॉन x प्लस v अपॉन x प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? कंबाइंड 1 मिनट वर्क कैसे निकालोगे? v अपॉन x प्लस v अपॉन x प्लस 3। ना कंबाइंड वर्क करते हैं और कितनी देर तक करते हैं? 3/13 मिनट्स तक। कंबाइंड दोनों मिलके अगर 3/13 मिनट्स तक वर्क करते हैं तो टोटल सिस्टम हमारा फुल हो जाता है। हम बोलेंगे कंबाइंड 3/13 मिनट्स वर्क कैसे निकालोगे? दिस v by x, this v upon x plus 3 multiply by 3/13 and this will be what? Complete work means पूरा कंटेनर फुल हो चुका है। ओके, so v by x plus v upon x plus 3 multiply by 3/13 and that will be equals to v, total volume v। okay, 13 3s are 39 plus 1 40/13, 13 3s are 39, 39 plus 1 40/13। और बच्चों इसमें से v कॉमन ले लो, v कॉमन लिया 1 by x plus 1 upon x plus 3 equals to v, v से v cancel, 40/13 1 by x plus 1 upon x plus 3 equals to 1, 1 upon x plus 1 upon x plus 3, ये 40/13 है ना, वहां जाके क्या हो जाएगा? 13/40। ओके क्लास, समझ आ रहा है बच्चों को? देखो एलसीएम लो, x प्लस 3 x प्लस 3 प्लस x 13/40, 2x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 3x 13/40 क्रॉस मल्टीप्लाई 80x 120 13x स्क्वायर 39x 0 13x स्क्वायर 39x minus 80x minus 120 0 13x square minus 41x minus 120 13x square minus 41x minus 120 equals to 0। इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 13x स्क्वायर माइनस 41x माइनस 120 इक्वल टू 0। 120 को मल्टीप्लाई करोगे आप 13 से और फैक्टर्स बनाओगे इस तरह से कि माइनस करने पर तुम्हारा माइनस का 41 आ जाए। देखो मैंने 13 को मल्टीप्लाई किया 120 से, बच्चों 120 क्या होता है? 4 into 30, फिर 30 क्या होता है? 2 into 15, फिर 15 क्या होता है? 3 into 5। अब फैक्टर्स को अरेंज करना है इस तरह से कि माइनस करने पर तुम्हारा 41 आ जाए। 13 5 बोलो 13 5 65, 4 2 8, 8 3 24, 4 2 8, 8 3 24, 65 and 24। 65 और 24 का डिफरेंस कितना होता है? 41। 65 और 24 का डिफरेंस कितना होता है? 41। यस, 65x माइनस का एंड प्लस 24x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। माइनस का 65x प्लस का 24x माइनस का 120 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन है क्या बच्चों? 13x x माइनस 5 प्लस 24 x माइनस 5 x माइनस 5 कॉमन, 13x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। x माइनस 5 इक्वल टू 0 बच्चों, x इक्वल्स टू 5 and 13x plus 24 equals to 0, x becomes minus 24 upon 13. This will be not possible. This will be not possible. So x की value 5. x की value 5. Okay. So finally बोलेंगे time
taken by first pipe B 5 minutes, okay, and time taken by second pipe or you can say other pipe कितना बच्चों बोलो x plus 3 ना, so 5 plus 3 कितना होता है 8 minutes. Time taken by first pipe 5 minutes and time taken by another pipe second pipe 8 minutes. Clear students? यही तो पूछा था. Find the time in which each pipe would fill the cistern. Time taken by first pipe 5 minutes and time taken by another pipe 5 plus 3 8 minutes. Okay students, clear है? Next देखो बच्चों, हमारा next question है a piece of cloth cost rupees 200. A piece of cloth cost rupees 200 if the piece was 5 centimeter longer and each meter of cloth cost rupees 2 less. The cost of the piece would remain unchanged. How long is the piece and what is the original rate per meter? Okay student, देखो हम बात करते हैं आपको. स्टार्टिंग बोलते हैं let length of piece of cloth be x meter. ऐसे सपोज कर लेते हैं. Let's suppose length of piece of cloth be x meter और वो piece of cloth कितने का है 200 रुपीस का है. उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है रुपीस 200 है. तो पर मीटर कॉस्ट कितना हुआ बच्चों? पर मीटर कॉस्ट कितने का हुआ 200 अपॉन x. पर मीटर कॉस्ट कितने का हुआ 200 by x रुपीस. पर मीटर कॉस्ट कितने का हुआ 200 by x रुपीस. बच्चों if piece was 5 सेंटीमीटर longer, अगर उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं तो देन लेंथ कितना होगा बच्चों बोलो x plus 5. लेंथ कितना होगा x plus 5. देन उसकी प्राइस रिमेन अनचेंज्ड. ठीक है, तो प्राइस तो वही है, टोटल कॉस्ट वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है. रुपीस 200 ही है 200. तो पर मीटर कॉस्ट कितना हो जाएगा बच्चों बोलो 200 अपॉन x plus 5. 200 अपॉन x plus 5. तो लेंथ बड़ी है, आपको 200 में ही ज्यादा कपड़ा मिल रहा है. 200 रुपए में ही 200 रुपीज में आपको पहले से ज्यादा कपड़ा मिल रहा है. मीन्स आपकी पर मीटर कॉस्ट कम हुई है. कितनी कम हुई है पर मीटर कॉस्ट रुपीस 2 लेस. ये कॉस्ट कम है, ये कॉस्ट ज्यादा है क्योंकि 200 रुपीज में पहले x मीटर मिल रहा था, अब 200 रुपीज में हमें x plus 5 मिल रहा है. तो ये पर मीटर कॉस्ट कम है, ये पर मीटर कॉस्ट ज्यादा है. ये पर मीटर कॉस्ट ज्यादा है और ये पर मीटर कॉस्ट कम है. और डिफरेंस कितने का है रुपीस 2 का. तो 200 अपॉन x माइनस 200 अपॉन x plus 5 इक्वल्स टू 2. टेक 200 कॉमन, 1 by x minus 1 by x plus 5 equals to 2. 2 ones are 200s are 100 LCM x plus 5. Okay, x plus 5 minus x equals to 1. Cancel 100 5s are 500 upon x square plus 5x equals to 1. 500 equals to x square plus 5x. x square plus 5x minus 500 equals to 0. ठीक है, 500 के फैक्टर बनाओ इस तरह से कि माइनस करने पर 5 आ जाए. तो 25 20s are 25x minus 20x minus 500 equals to 0. कॉमन लो x plus 25
-20 x प्लस 25, हाँ x प्लस 25 x माइनस 20 इक्वल्स टू 0, x प्लस 25 इक्वल्स टू 0, x कितना होएगा -25, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। x माइनस 20 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 20, x equals to 20 means length of piece of cloth 20. So length of piece of cloth is 20 meter. कितना मीटर बच्चों? 20 मीटर। एंड पर मीटर कॉस्ट कितना हो बोलो? पर मीटर कॉस्ट कितना हो गया बोलो बच्चों? 200 अपॉन x, 200 अपॉन x का वैल्यू 20, 20 1 जा 20 10 जा रुपीज 10। तो दोनों आंसर्स आ गए। हाउ लॉन्ग इज द पीस? लेंथ ऑफ ओरिजिनल पीस ऑफ क्लॉथ इज 20 मीटर। एंड व्हाट इज द रेट पर मीटर कॉस्ट? पर मीटर कॉस्ट इज रुपीज 10। ओके, लेंथ ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ इज 20 मीटर and the per meter cost is rupees 10. Clear students? Length of piece of cloth कितना? 20 meter and the per meter cost is rupees 10. Next देखो बच्चों, students बहुत important है। CBSE 2008 में फर्स्ट टाइम क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हो रही है ना। उसके बाद कई बार CBSE ने रिपीट भी किया इसको बोर्ड एग्जाम में। अच्छे से समझना बच्चों। A peacock is sitting on the top of a pillar which is 9 meter high. ये ग्राउंड, ये हमारा बोल सकते हैं पिलर है, इसकी हाइट 9 मीटर है बच्चों। From a point 27 meter away from the bottom of the pillar, a snake is coming to its hole at the base of the pillar. यहाँ पर स्नेक का होल है। स्नेक जो सांप होते हैं बिल में रहता है ना, उसका यहाँ पर घर है। और वो from a point 27 meter away from the bottom of the pillar, a snake is coming to its hole. Suppose वो स्नेक यहाँ से आ रहा है, इधर इसको जाना है। This is B point, this is C point, this is A point. स्नेक B से C की तरफ जा रहा है। स्नेक मूविंग फ्रॉम पॉइंट बी टू सी, उसका घर है यहाँ पर, उसको यहाँ जाना है। और ये 27 मीटर डिस्टेंस टोटल। ओके, सीइंग द स्नेक द पिकॉक पाउंसेस ऑन इट। पिकॉक कहाँ है? पिकॉक यहाँ बैठा है, ये रहा पिकॉक। स्नेक को इधर आते हुए देख पिकॉक ने उस पर अटैक किया। स्नेक अपने घर की तरफ जा रहा है यूं, पिकॉक ने देखा स्नेक को आते हुए देखा तो उस पर अटैक किया। सपोज वो पूछता है, और दोनों की स्पीड सेम है। जिस स्पीड से स्नेक अपने घर की तरफ जा रहा है उसी स्पीड से पिकॉक भी इसकी तरफ आया उस पे अटैक करने के लिए। इफ द स्पीड्स आर इक्वल, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट? कितने डिस्टेंस पे होल से कितने डिस्टेंस पे पिकॉक ने स्नेक को पकड़ लिया, अटैक कर दिया। सपोज हम मान लेते हैं पिकॉक ने स्नेक को यहाँ पे पकड़ा। हम क्या मानते हैं? पिकॉक ने स्नेक को यहाँ दबोच लिया, है ना, दबोच लेना। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? एक बात समझना बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल है बिकॉज ये पिलर स्ट्रेट है, वर्टिकल है। ओके, इस पॉइंट को बोलते हैं डी। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना है, मैं आपको बताता हूं। सपोज ये x, DC को मैंने सपोज किया x, तो ये BD कितना हो जाएगा? 27 माइनस x। ठीक है, A से D कौन आया? पिकॉक। B से D कौन आया? स्नेक। ठीक है बच्चों, स्पीड दोनों का सेम है। स्पीड of snake and peacock is same। ठीक है, और दोनों ने डिस्टेंस भी सेम, मतलब दोनों का टाइम भी सेम रहा होगा। ठीक है, जिस टाइम से ये यहां से आया
उसी टाइम पे बी से डी आया। ठीक है, सब कुछ सेम है, स्पीड सेम है तो डिस्टेंस भी सेम होगा। तो हम इसमें सो डिस्टेंस ऑल्सो सेम। ठीक है, स्पीड सेम है तो डिस्टेंस भी सेम होगा। देखो आपको एक बात दे रखी है इसमें, बहुत समझने वाली बात है। A peacock is sitting at the top of a pillar which is 9 meter high. From a point 20 meter away from the bottom of the pillar, a snake is coming to its hole at the base of the pillar. Seeing the snake, the peacock pounces on it. जैसे ही उसने स्नेक को चलते हुए देखा, पिकॉक ने भी चलना शुरू कर दिया। मतलब दोनों ने स्टार्ट कर दिया सेम टाइम पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। They both snake and peacock start moving at the same time. Getting or not? हाँ, ये लिखना चाहूंगा मैं, both peacock and snake starts moving at same time. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि same time. Both peacock and snake starts moving at same time. Timing same, speed same. ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल बात है। जैसे स्नेक ने चलना शुरू किया, चलना स्टार्ट ही किया, पिकअप की नजर पड़ी, उसने मूवमेंट स्टार्ट किया, पिकअप ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। मींस दे स्टार्ट मूविंग एट द सेम टाइम। उन्होंने अपना मूवमेंट, दोनों ने अपना मूवमेंट सेम टाइम पे स्टार्ट कर दिया। स्नेक ने यहां से चलना शुरू किया, पिकअप ने यहां से चलना शुरू किया। दोनों का स्पीड भी सेम है, स्पीड सेम, टाइमिंग सेम। और स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड सेम, टाइम सेम, सो डिस्टेंस आल्सो सेम, सो डिस्टेंस आल्सो सेम। तुम क्या बोलेंगे, BD इक्वल टू AD। जो डिस्टेंस स्नेक ने कवर किया है उतना ही डिस्टेंस पिकॉक भी कवर करेगा, क्योंकि स्पीड सेम, टाइम सेम, सो डिस्टेंस आल्सो सेम। तो हम बोलेंगे BD इक्वल्स टू AD। BD कितना बच्चों, 27 माइनस x। तो AD भी कितना, 27 माइनस x। BD का वैल्यू 27 माइनस x, सो AD आल्सो 27 माइनस x। इन ट्राइंगल ACD apply पाइथागोरस थ्योरम। कैसे अप्लाई करोगे, AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AD कितना बच्चों, AD का वैल्यू बताओ, 27 माइनस x, 27 माइनस x। AC कितना बच्चों, 9। DC इज x। सॉल्व करेंगे इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 81 प्लस x स्क्वायर कैंसल, 27 स्क्वायर, ये प्लस 81 इधर आके माइनस 81, 2 7 से 54 माइनस 54x इधर जाके प्लस 54x। ओके, 27 स्क्वायर कितना होता है, 729 माइनस 81, 54x। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 12 में से 8 गया 4, 6, 54x, 648 अपॉन 54x। 9 6 9, 7 63, 6 6 x कितना है बच्चों, 12, x12 means DC12, x12 means DC12, 12 meter, DC 12 meter। उसने पूछा था at what distance from the hole is the snake caught। होल, ये रहा होल, दिस इज द होल।
होल से कितनी दूरी पर पिकॉक ने स्नेक को पकड़ा या फिर उस पे झपटा मारा, कितने डिस्टेंस पे बताओ, 12 मीटर डिस्टेंस पे। हम बोलेंगे एट 12 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द होल, होल से कितना, 12 मीटर डिस्टेंस पर, एट 12 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द होल स्नेक peacock attack on snake, peacock attack on snake। क्या बोलेंगे, at 12 meter distance from the hole peacock attack on snake या snake caught। ओके क्लियर स्टूडेंट्स कि होल से कितने डिस्टेंस पर पिकॉक ने अटैक किया स्नेक पर, एट द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द होल। क्या आंसर आएगा बोलो, एट द 12 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द होल। बहुत इजी सा, वापस बात करते हैं। ये पिलर है 9 मीटर हाई, ये पिलर के नीचे ही एक होल है, बिल है जिसमें स्नेक रहता है। स्नेक ने मूवमेंट किया, यहां से चलना शुरू किया और ये पॉइंट इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, 27 मीटर पे है। जैसे ही स्नेक ने मूवमेंट स्टार्ट किया इधर की तरफ, पिकॉक ने मूव करना स्टार्ट किया इधर की तरफ, बिकॉज पिकॉक वांट्स टू अटैक ऑन स्नेक। ओके, दोनों का मूवमेंट टाइमिंग सेम था। जिस टाइम पे स्नेक ने चलना शुरू किया उसी टाइम पे पिकॉक ने भी चलना शुरू कर दिया, टाइमिंग सेम और उनका स्पीड भी सेम है, स्पीड्स आर इक्वल, स्पीड सेम, टाइम सेम, सो डिस्टेंस आल्सो सेम। डिस्टेंस मतलब हमने सपोज किया कि पिकॉक ने स्नेक पर कहां पर झपटा मारा होगा या फिर कहां पे अटैक किया होगा, हमने वो पॉइंट कंसीडर कर लिया डी और वो सपोज कर लिया x डिस्टेंस पर है फ्रॉम द होल। ये x से तो कितना हो जाएगा 27 - x, ये 27 - x से तो कितना हो जाएगा, ये भी सेम, बिकॉज़ डिस्टेंस आल्सो सेम, डिस्टेंस आल्सो सेम। ये डिस्टेंस 27 - x, सो दिस डिस्टेंस आल्सो 27 - x। अप्लाई कर दिया इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम, x आ गया 12। सो हमारा आंसर है स्नेक, peacock attack on snake at distance of 12 centimeter from the hole। ओके क्लास, आज तक सफिशिएंट है। यहां पर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटली चैप्टर फिनिश हो जाता है। हमने इसमें पढ़ा फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, डी मेथड, है ना। इसके अलावा पढ़ा हमने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में, काफी वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व भी कर दिए हैं। मैं आपको और भी वर्ड प्रॉब्लम्स और अच्छे क्वेश्चन आपको सेंड करूंगा एज अ पीडीएफ होमवर्क फाइल आपको व्हाट्सएप पे, वो सॉल्व करना बच्चों। और इन सभी क्वेश्चंस को नोटबुक में कंप्लीट करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। ओके स्टूडेंट्स, कोई डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय। नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।